previous class, we had learned about science and the person who is studying about science. These two things we had learned in our previous class, and I also told you something about laboratory in our previous class. So, students, today we will learn about two topics which are in front of people. Number one is instrument used by scientists, and number second, some instruments of laboratory. Students, first of all, I am talking about instrument used by scientists. Students, when you visit a laboratory of a scientist, you can see many instruments there. Many instruments which be fixed on cupboards, shelves, or other places. So, students, number one thing which is very common in each laboratory, which is microscope. What is function of microscope? Microscope we can use in special instrument in laboratory called microscope. Microscope can help us to see small objects in bigger shape. Means if we have any small object like an insect and we want to see the same object in bigger shape, so we can use microscope. By the microscope, the object should be bigger and we can easily see their same object. And number two is balance. Students, balance is an instrument used by a scientist for measuring the mass of a body. Mass is measured in grams. Students, when you visit the laboratory, there you can also see a special machine called balance. Balance machine used by scientists for measuring any type of mass. And number three, measuring cylinder. A measuring cylinder is used to measure the volume of a liquid in liters. Students, there is another instrument name is cylinder. By the cylinder we can measure the liquid objects. As I told earlier, there are so many chemicals who are present in laboratory. So if you want to measure that liquid, you have to use measuring cylinder. And very important thing which also should be available in any type of laboratory, which is stopwatch. Students, stopwatch we can use for measuring times in seconds, minutes, and hours. Students, one more thing I will tell for stopwatch. You may see one time is going very quickly in stopwatch. That time is known as microseconds, and there are 100 microseconds in 1 second. Okay. And other thing is meter rule. Student, meter rule is just like your scale. Is used for to measure the length of anything at which the scientist is experimenting. And another thing which should be a thermometer. Thermometer is used for calculate the temperature. Okay, students. Now I want to tell these all things which I explained to you in front of people in Urdu language. Students, आपके सामने कल मैंने दो बातें रखी थी. एक तो ये कि साइंस क्या होती है, दूसरा ये कि जो शख्स साइंस के बारे में पढ़ता है, साइंस के बारे में स्टडी करता है, उसे साइंटिस्ट कहा जाता है. हर इंसान जो है कोई भी काम करने के लिए कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करता है. तो साइंटिस्ट जो है वो भी अपना काम, अपना तजर्बा करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया था माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत ही आम सी चीज़ है लेबोरेटरी के लिए. माइक्रोस्कोप का क्या काम है? माइक्रोस्कोप का काम है हमें कोई भी चीज़ बढ़ा करके दिखाना, कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा करके दिखाना. मतलब हमारे पास अगर कोई छोटा सा कीड़ा है, अगर हम उसे अच्छे तरीके से उसकी स्टडी करना चाहेंगे तो हमें उसके लिए जरूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोप की. माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई यानी कि बड़ा करके दिखाएगा, जिसके बाद हम उसकी स्टडी जो है आराम से आसानी से कर सकेंगे. उसके बाद है बैलेंस. स्टूडेंट, जब आप किसी भी शॉप पर जाते हो, आप किसी शॉपकीपर को कोई सामान कहते हो मुझे 1 किलो ये 2 किलो दे दो, तो वो आपको एक मशीन रखी होगी, उसके वो मेजर करके उसके बाद उस मशीन का नाम होता है बैलेंस, जिसके ऊपर वो उसको नापता है. जितनी क्वांटिटी आप उससे मांगते हो वो उसी क्वांटिटी के
मुताबिक आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है। और याद रहे वो आपको चीज़ देता है किलो के हिसाब से, और किलो का मतलब होता है 1000। अगर आप उसे 1 किलो शुगर की डिमांड करते हैं, मतलब आप उसे 1000 ग्राम चीनी की डिमांड कर रहे हो। किलो का मतलब ये है 1000, तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो वाटेवर। उसके बाद है स्टाफ का। स्टूडेंट्स, हर काम करने के लिए एक टाइम का मुख्तस होना बहुत ज़रूरी है। तो साइंटिस्ट जो है अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान टाइम काउंट ज़रूर करते हैं, और इस टाइम काउंट करने के लिए उन्होंने अपने लेबोरेटरी के अंदर एक खास किस्म की मशीन रखी होती है, जिसे कहते हैं स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो है वो मिनट्स और आवर्स और सेकंड्स में भी टाइम लेने के मेजर कर सकती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो माइक्रो सेकंड्स में भी टाइम मेजर करती है। आप जब कभी स्टॉप वॉच को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि एक टाइम होगा जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रहा होगा, उससे आप कहेंगे माइक्रो सेकंड। और याद रहे 1 सेकंड के अंदर 100 माइक्रो सेकंड्स होते हैं। उसके बाद है मीटर रूल। स्टूडेंट्स, मीटर रूल जो है वो किसी भी चीज़ की लंबाई नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे होता है जैसे कि आपके पास स्केल मौजूद है। उसके बाद है थर्मोमीटर। स्टूडेंट्स, थर्मोमीटर का इस्तेमाल जो साइंटिस्ट होते हैं दर्जे हरारत मालूम करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम अगर कभी बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं हमारे ऊपर थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, इससे वो हमारा टेम्परेचर बता सकते हैं। तो जब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें उसका टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तो इस काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे थर्मोमीटर का। स्टूडेंट्स, आपको लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नजर आएंगे। उसके अंदर पहले मैं आपको बता चुका हूँ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जो है वो किसी भी लिक्विड यानी माया की मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, उसके बाद है मेजरिंग फ्लास्क। मेजरिंग फ्लास्क भी ऐसे ही है जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर, लेकिन इसका जो शेप होता है वो दूसरा होता है। मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर आपके जैसे स्केल के ऊपर सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं, ऐसे निशान लगे होते हैं, जबकि मेजरिंग फ्लास्क के ऊपर ऐसे निशान नहीं होते। उसके बाद है ड्रॉपर। स्टूडेंट, ड्रॉपर का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और आपने कोई भी लिक्विड जो है वो ड्रॉप की शेप में या ड्रॉप की सूरत में, ड्रॉप की क्वांटिटी में किसी चीज़ के अंदर मिक्सअप करना है, तो आप ड्रॉपर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ड्रॉप्स को उसके अंदर मिक्सअप कर सकें। उसके बाद है ब्यूरेट। स्टूडेंट, ब्यूरेट जो है वो एक खास किस्म का एक अपना गिलास की ट्यूब होती है, उसके ऊपर इसी किस्म के निशान होते हैं जैसे कि आपके मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर मौजूद है, लेकिन उसके नीचे एक स्पाइक बना होता है जिसकी मदद से आप उसको किसी भी एक खास जगह पर फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको वहाँ पर स्क्रू गेज और बड़े कैलिपर्स भी नजर आएंगे। स्टूडेंट, अब टाइम है आपके होमवर्क का। स्टूडेंट्स, टाइम टू डू योर होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज ऑन पेज नंबर 5. Page number 5, exercise 2. Match the instruments and in list A to the quality they measure in list B. Students, मैंने आपके सामने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम लिए और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि उनको किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखे हुए हैं और साथ साथ जिस मकसद के लिए वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो सामने लिखे हुए हैं। आपने पूरे ध्यान के साथ खास इंस्ट्रूमेंट को उसके खास काम के साथ मैच करना है। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, वी विश यू लक।